Everyone, today we start how to getting a tangent by using the coordinate geometry. In coordinate geometry, if a curve passes through the origin, then we equate its lowest degree term to 0, then we get required tangent. This formula is applicable for all curves that are passes through the origin, that we can get, then we get easily its required tangents. So let's start. Let a curve, then first we write EOT and EON, equation of tangent and equation of normal by coordinate geometry. If any curve लिखिए आप लोग, any curve passes through the origin, then equalizing lowest degree or power are similar, degree comes to 0, then we get required tangent or required tangent. That formula used for finding tangent if a curve passes through origin, that is required. So we are take a curve and get its tangent. Then for example, I take a curve x to power 4 plus y to power 4 plus x square minus y square is the equation of a curve, and it is also passes through the origin. But why? If we put 0 0 replaced by x and y, then we get 0 plus 0 plus 0 minus 0. At the place of x and y we put 0 0 respectively, then we get both sides are same, then we can say that curve which passes through the origin. So that curve which passes through the origin, then we equate lowest degree term. Their highest degree term is 4 x to power 4 and y to power 4 combinedly, but lowest degree term is x square minus y square. Equalizing it to 0, x square minus y square equal to 0, that is nothing but that is tangent y square equal to x square, then y equal to plus minus x, then we get y equal to plus x and y equal to minus x. Both are the tangent of given curve pass through the origin. Okay, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन. ये नोट कर लीजिए आप लोग. इसको मैं वापस बता देता हूँ इस बात को. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने का प्रोसीजर होता है. इसके लिए आपको क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प में देखो क्या होता है, अगर कोई कर्व है, या आप इजीली सीधा भी यूज कर सकते हैं इसको, कि अगर कोई कर्व है वो ओरिजिन से पास होना जरूरी है, मूल बिंदु से 0 0 से पास होना जरूरी है, तब आप इसकी टेंजेंट स्पर्शरेखा फाइंड कर सकते हो. तो इसके लिए क्या करोगे, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 के इक्वल कर दोगे, और यहां से आपके पास जो टेंजेंट आएगी, एक हो सकती है, दो हो सकती है, ये जो टेंजेंट आएगी वो ही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा. ठीक है, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, dy बाई dx फाइंड करने की जरूरत नहीं है. अगर आप इस क्वेश्चन में dy बाई dx भी फाइंड करते हो तो क्या होता है, देखिए, जैसे मैं इस क्वेश्चन के अंदर dy बाई dx भी फाइंड करके आपको बताता हूं, तो होने वाला क्या है एग्जैक्टली क्या होगा, 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब dy बाई dx प्लस 2x माइनस 2y dy बाई dx, the differentiation of given equation. Then we get 4y cube minus 2y dy by dx is nothing but is equal to minus 2x minus 4x cube. Take minus common, then we can say dy by dx equal to minus 2x plus 4x cube upon 4y cube minus 2y. This curve is passes through the origin, then so there are no required condition
टेंजेंट इज विच प्लेस लाई, सो दैट इज नॉट sufficient case. So we use given formula by using the help of the coordinate geometry. Okay, and that become infinity. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, जैसे और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, सीधा अपन फॉर्मूले से ही करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसके लिए अपने को इसकी टेंजेंट बतानी है। इसकी टेंजेंट बताने के लिए अपन क्या करेंगे, वैसे नॉर्मली अपने को मालूम भी होता है ये एक पैराबोला है और पैराबोला में x की पावर 1 है, तो ये किधर मुंह फाड़ेगा, ये देखो ये साहब इधर मुंह फाड़ेगा। अब ये इधर मुंह फाड़ेगा, इसका मतलब इसकी टेंजेंट कौन हो गई, एक्स एक्सिस इसकी टेंजेंट हो गई, और यहां से भी मैं ये बात ये एक्स एक्सिस की तरफ फाड़ेगा, एक्स एक्सिस की तरफ, ये लो जी। तो इसका मतलब इसकी टेंजेंट कौन हो गई, वाई एक्सिस। यहां से मैं प्रूव कर दूंगा इस फॉर्मूले से। ये टर्म 0 से पास हो रहा है क्या, x की जगह y की जगह 0 पुट कर दो तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये तो हाईएस्ट टर्म है और ये लोवेस्ट डिग्री टर्म है, इसको 0 के इक्वल कर दूंगा, 4x इक्वल टू 0 हो गया। यहां से x इक्वल टू 0 आ गया। x इक्वल टू 0 आने का मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये y एक्सिस पे बनेगा। किस पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, और y एक्सिस इसकी क्या होने वाली है, टेंजेंट होने वाली है। y एक्सिस इसकी क्या होने वाली है, टेंजेंट होने वाली है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब और आगे मैं बात करता हूं, देखो आगे मैं बात करता हूं, जैसे इसी टाइप का एक और कर्व ले लेता हूं जो आप जानते हो। जैसे यहां पे अभी मैंने ले लिया क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ले लिया, इसकी टेंजेंट पता नहीं, इसकी टेंजेंट क्या होगी। अब ये अपने को मालूम पड़ गया, अगर अपने को क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा है कि ये 0 0 से पास हो रहा है या नहीं है, तो भी अपन चेक कर लेंगे इसको। x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। 0 इक्वल टू 0 आने का मतलब अपन पहले वैसे नॉर्मली इसका डायग्राम जानते भी हैं, और अगर नहीं भी जानते तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हाईएस्ट डिग्री टर्म है और ये लोवेस्ट डिग्री टर्म है। लोवेस्ट डिग्री टर्म को किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के। तो यहां से y का वैल्यू अपने को कितना मिल गया, y का वैल्यू 0 मिल गया। y का वैल्यू 0 मिलने का मतलब कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। x एक्सिस इसकी टेंजेंट होगी। डायग्राम में बना देता हूं, इसमें कौन गरीब है, y गरीब है, तो पैराबोला किधर मुंह फाड़ेगा, ऊपर की तरफ, y की तरफ मुंह फाड़ेगा। जो गरीब होता है उसकी तरफ होता है प्याले का मुंह, बाउल का मुंह। तो अब ये y की तरफ हो गया, y की तरफ होने का मतलब इसकी टेंजेंट कौन हो गई, x एक्सिस इसकी टेंजेंट हो गई। और क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे क्वेश्चनों का पुलिंदा है मेरे पास, सारा पिटारा खोल दूंगा तुम्हारे सामने, देखना। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है, एक है ना सर्कल का इक्वेशन है। इस सर्कल का ओरिजिन कितना है, इसका सेंटर कितना है, -2 है, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 + 4, और ये √8 हो गई। इसका मतलब क्या हो गई, 2√2 इसकी क्या होगी, ये अपने पास रेडियस होगी। अब क्या करना है अपने को, इसकी टेंजेंट बतानी है। इसकी टेंजेंट बताने के लिए सीधा ही करता हूं, ये तो हाईएस्ट डिग्री टर्म है और यहाँ पे 1 1, इसका मतलब ये लोवेस्ट डिग्री टर्म है। लोवेस्ट डिग्री टर्म को किसके इक्वेट कर दूंगा, 0 के इक्वेट कर दूंगा, 0 के इक्वेट कर दूंगा। यहां से 4 का डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगी, 0। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा था क्या, x की जगह 0 करो, ये मर गया, 0 करती ये मर गया, 0 करती ये मर गया, 0 करती ये मर गया। इसका मतलब 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब बात सही थी, अपने कंडीशन लगाई वो गलत नहीं है। और ये क्या अपनी आगे टेंजेंट आ गई, ये अपनी क्या आगे टेंजेंट आ गई। इस फॉर्मूले से आप टेंजेंट फाइंड कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, देखना मस्त सा क्वेश्चन है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy इक्वल टू 0। ये भी सर्कल है, तो अपन क्या करेंगे, ये 0 0 से पास हो रहा है, ये 0 रखती, ये मरा, ये मरा, ये मरा, ये मरा, x y की जगह 0 रखती, सारे मर गए। इसका मतलब 2fx प्लस 2gy को मैं 0 के इक्वल कर दूंगा। इसका मतलब ये लोवेस्ट डिग्री टर्म है, इसको 0 के इक्वल कर दूंगा, 2 का डिवाइड हो गया, fx प्लस gy इक्वल टू 0। ये अपनी क्या हो गई, रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गई, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इस बात को, फिर आगे बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही हेडिंग है, ईओटी और ईओएन अपने को फाइंड करना है। इस बार कॉनिक सेक्शन का यूज करूंगा, भरपूर यूज करूंगा कॉनिक सेक्शन। बाई क्या कर दूंगा, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के अंदर क्या होता है, कॉनिक सेक्शन का आपको मालूम होगा, उसमें सर्कल होता है, इलिप्स होता है, पैराबोला, हाइपरबोला, ये टाइप होते हैं सारे ना इसके अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके लिए t इक्वल टू 0 होता है। इसके लिए t क्या होता है, 0 होता है। t का मीनिंग क्या होता है, वो आप छोड़िए, वो टेंजेंट, ये टेंजेंट के लिए ना।
अब सबसे पहले आपको ये देखना होता है एक्स स्क्वायर को इसके अंदर क्या लिखा जाता है, एक्स x1 लिखना है आपको, ये बात ध्यान में रखनी है। वाई स्क्वायर को क्या लिखना है, इसी तरीके से वाई y1 लिखना है। और यहां से अपने पास ये 2d चल रही है, इसका मतलब यहां पे एक चीज और आएगी 2x को आपको क्या लिखना है, x प्लस x1, 2y को क्या लिखना है, y प्लस y1 लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन हो गया, कोई भी अपने पास कॉनिक सेक्शन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये लो 12x हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 12x, और इसके ऊपर 8 कहाँ पे निकालनी है आपको, 4,8 के ऊपर, 4,8 पे क्या निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का मतलब ये x1 ये y1, y स्क्वायर को क्या लिख दोगे y1, y स्क्वायर को क्या लिख दोगे y1। यहाँ पे x है, x अकेला तो लिखते नहीं है, अपन 2x को लिखते हैं, तो इसको क्या लिख दूं, अरे इसको 2x बढ़ाऊंगा तो क्या लिखूंगा बोलो, 6 इंटू 2x नहीं लिखूंगा या 6 इंटू 2x लिखूंगा। यहाँ पे y1 हो गया, y1 तो है ही, y1 का वैल्यू कितना है 8, तो 8y इक्वल टू 6 इंटू 2x का, 2x को क्या लिख दूंगा, 2x को लिख दूंगा x प्लस x1, और ये 8y इक्वल टू 6, x प्लस x1 का वैल्यू कितना है 4, ये लो जो मल्टीप्लाई कर दो, बस अपने पास टेंजेंट आ गई 6x प्लस 24, और ये देखो कितना हो गया, देखो 6x माइनस 8y प्लस 24 इक्वल टू 0। इक्वेशन को हल्का कर दो, हल्का करने के लिए किसका डिवाइड करोगे, 2 का डिवाइड कर दो तो हल्की हो जाएगी, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और क्वेश्चन करना चाहते हो तो और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, इसके ऊपर बेस आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे टेंजेंट के अंदर, एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को किससे करोगे y1 से, 2x को क्या लिखोगे x प्लस x1, और 2y को क्या लिखोगे y प्लस y1। और इससे आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो वो आप सॉल्व कर पाओगे। देखो टेंजेंट निकालने के लिए कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले क्या लेके आते हैं, देखो क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन लेके आए एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने दे दिया ये लो 4y, ये कोई कर्व है, ये क्या है कॉनिक सेक्शन का कर्व है, पैराबोला है, और इसके ऊपर 8 मेरे को पॉइंट दे दिया मैंने आपको, 4,8 दे दिया, ये x1 है ये y1 है। तो सबसे पहले शकल बढ़ा देता हूँ, शकल कैसे बढ़ाऊंगा, y है अकेला y या अकेला x या अकेला y होता है तो उसको 2 के फॉर्म में लिख दिया करो आप, 2 के फॉर्म में लिख दो इसको पहले, तो 4 को क्या लिख दूंगा 2 इंटू 2y, अब x स्क्वायर को क्या लिख दूंगा x1, x स्क्वायर को क्या लिख दूंगा x1, और 2y को क्या लिख दूंगा y प्लस y1 लिख दूंगा। ये x1 का वैल्यू बोलो कितना है 4, 2, और y प्लस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का कितना है 8, ये देखो 2 से 4 मर गया, ये कितना हो गया 2x इक्वल टू y प्लस 8 हो गया। इधर ले जाओ x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गई है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है टेंजेंट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर कर्व के अंदर एक्स स्क्वायर को x1 लिखना है, y स्क्वायर को y1 लिखना है, और 2x को क्या लिखना है आपको x प्लस x1, और 2y को क्या लिखना है y प्लस y1 लिखना है। बेसिक चीज यही है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखो इसके बाद में अपन ना थर्ड के अंदर देखते हैं एलजेब्रा से फाइंड करेंगे। एलजेब्रा के अंदर आपको ये बेसिकली वैसे ईओटी फाइंड कर रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड कर रहा हूं, स्पर्शरेखा की समीकरण। सबसे पहले ईओटी जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है अपने अंदर अपने पास, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं बाय एलजेब्रा। अब एलजेब्रा क्या होता है, देखो एलजेब्रा यानी क्या है कि एलजेब्रा के अंदर जो आपको कर्व होगा, कर्व आपको गिवन होगा 2D में, और आपको जो एक लाइन गिवन होगी, वो लाइन उसकी टेंजेंट कब बनेगी, वो उसकी टेंजेंट तब बनेगी जब आप इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दोगे और उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में आप d को 0 कर दोगे, और d को 0 करने का मतलब आपको मैंने बताया भी है वैसे, जैसे ये कोई लाइन है और d 0 होने का मतलब रूट्स एक ही रूट होता है, और एक ही रूट होने का मतलब वो टच करेगा। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब वो ऐसे होता है, तो इसका मतलब वो टेंजेंट नहीं होती है ना, वो सेकेंट होती है। तो टेंजेंट होने के लिए वो क्या करना, अपने को करना क्या है, d को 0 करना है। d इक्वल टू 0 कर दूंगी तो आपके पास वो टेंजेंट निकल जाएगी। तो एलजेब्रा में इस टाइप से आप यूज कर सकते हो, मतलब वो लाइन उसकी टेंजेंट कब होगी, वो लाइन को अगर वो उसकी टेंजेंट है, तो अगर वो लाइन उसकी टेंजेंट है तो अपन उस लाइन को उसके अंदर पुट कर देंगे कर्व के अंदर, और d को 0 करवा देंगे। d को 0 करवाने से अपने को जो मिलेगी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, देन वी गेट इक्वल टेंजेंट, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ एलजेब्रा इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो इस टाइप से अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो एलजेब्रा के अंदर अपन क्वाड्रेटिक, फर्स्ट वी फॉर्म क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग line and curve also, then we get a quadratic equation and equate
d equal to 0, then we get required tangent. This is the condition of tangency. Okay, next स्टार्ट करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग। फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं टेंजेंसी की कंडीशन बता रहा हूं कुछ चीजों के लिए। टेंजेंसी की कुछ कंडीशन बता रहा हूं। तो टेंजेंसी अपने पास सर्कल होता है। सबसे पहले सर्कल का आपको मालूम होगा, सर्कल जो होता है सर्कल का इक्वेशन आपको मालूम होगा, सारी चीजें मालूम होगी। तो सर्कल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन, ये फोर्थ बात है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कुछ कर्व के लिए कंडीशन बता रहा हूं, तो आप लिख लीजिए जल्दी फटाफट। तो अपने पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है, वो टच करेगी, वो टच करेगी, ये आप 11th में भी पढ़ चुके हो, टच करेगी। तो सर्कल के लिए टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, सर्कल के लिए क्या होती है, c इक्वल टू अपने पास होता है प्लस माइनस √1 प्लस एम स्क्वायर, ये टेंजेंसी की कंडीशन होती है। उसके बाद में पैराबोला आता है। पैराबोला के लिए टेंजेंसी की कंडीशन अपने पास होती है c इक्वल टू a/m, ये बहुत आसान है, छोटा सा है। और थर्ड है इलिप्स c इक्वल टू प्लस माइनस, ये खासकर यूज होता है, हाइपरबोला इतना यूज नहीं होता है। ये टेंजेंसी की कंडीशन होती है। c की कंडीशन अपने पास, c का वैल्यू होता है, ये अपने पास टेंजेंसी की कंडीशन होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसको नोट करिए आप, इसके बाद में आपको आगे बताया जाएगा।